Hello all my dear students, good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and today I am here with your new chapter, that is chapter number 2, microorganisms, friend of foe. As you know that at present your revision classes is running, that's why I am just providing this video, and by means of this video you will able to understand or understood all your concept those were taught earlier, and earlier you have studied this chapter also. So it will be more convenient after watching the video that you all will be able to understood whatever was taught in the previous videos. So without wasting the time, I am starting with the chapter microorganisms, friend or foe. Microorganism, friend or foe. This is the chapter number 2. First of all, we will discuss that what are the topics, कौन से topic यहाँ पे हैं. So first of all, we have to study about microorganisms. Second, categories of microorganisms. Third, useful activities of microorganisms. Second, harmful activities of microorganisms. Next, microorganisms and environment. माइक्रोऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है. लास्ट, फूड प्रिजर्वेशन. Okay beta, so all these topics will be discussed in this chapter. So we will start with the topic number 1, that is microorganism. So here I am starting with microorganisms. What are these? We can write organism which cannot be seen with our naked eyes. Okay, so organism which cannot be seen with our naked eyes are called microorganism. And we can also call them microbes. यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोब्स. Okay, so microorganism which cannot be seen with our naked eyes, or we can say that the organisms which can't be seen with our naked eyes are known as microorganism. Another name of microorganism is what? Microbes. And one more important thing, we use microscope to see the microbes को देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट, now we will discuss that where these are found. It means that habitat. So habitat means that the place where microorganisms are found. So microorganisms are present everywhere. Microorganisms are present everywhere. Means that
ice cold region, hot spring region, desert soil, and even in human bodies. Okay, so what is the place of microorganisms? So microorganisms are present everywhere. You can see here ice cold region मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा जहाँ पे है, हॉट स्प्रिंग रीजन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, डिजर्ट जहाँ पे बारिश कम होती है, एंड सॉइल इवन इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. In our body there are also various kind of harmful as well as useful microbes are present. ठीक है बेटा, तो ये तो था प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट आर ओनली विजिबल विद माइक्रोस्कोप. ओनली विजिबल विद माइक्रोस्कोप यानी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल किससे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से. आर कॉल्ड माइक्रोब्स. ओके बेटा, नेक्स्ट व्हाट इज माइक्रोस्कोप? यहीं से देख लेते हैं. माइक्रोस्कोप इज द, we can say that an instrument used to magnify the object, by using आपको पता है क्या यूज होता है माइक्रोस्कोप में? लेंसेज. Okay beta, so what is microscope? Microscope is a optical device, or we can say that it's an instrument that is used to magnify the object. It means that it just enlarges the size of the object. मान के चलते हैं ये आपका चौक था, इतना छोटा सा दिख रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखेंगे ना तो ये इतना बड़ा या इससे भी बड़ा दिख सकता है. कहने का मतलब इट जस्ट enlarges or enhance the size of the object. So this was all about the microorganism, their definition. Now it's time to study about the categories of the microorganisms. The next topic is categories of microorganisms. बेटा यहाँ से हम देखेंगे कम से कम 4 कैटेगरीज. कैटेगरी नंबर 1, दिस वन इज बैक्टीरिया. कैटेगरी नंबर 2, प्रोटोजोआ. कैटेगरी नंबर 3, एल्गी. कैटेगरी नंबर 4, फंजाई. So there are total 4 categories. Viruses are also the category of the microorganism, but we will discuss later on, or you can write here also. 5th, वायरस. ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. So let's start with bacteria. Bacteria is the simplest. These are the simplest and oldest microbe. यानी बैक्टीरिया क्या है? ये सबसे सिंपल और सबसे ओल्ड है. दिस इज व्हाट? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट. What is the meaning of this? It means that uni मतलब सिंगल और सेलुलर मीन्स सेल. It means that बैक्टीरिया के पास कितनी सेल होती है? Only 1. And this is also what?
prokaryote, it means that primitive type. So here well defined nucleus and nuclear membrane is also absent. So what is bacteria? Bacteria is unicellular. Okay, what are the nature? Nature ये क्या है? Prokaryotic, means that it has the lackness of well defined nucleus and nuclear membrane, as well as various kind of membrane bound cell organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, लाइसोसोम, ये सभी भी यहाँ पे एब्सेंट हैं. इसके साथ साथ इसके पास कितनी सेल है? जस्ट वन. नेक्स्ट, फाउंड, और वी कैन राइट प्रेजेंट एवरीवेयर. प्रेजेंट एवरीवेयर यानी बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खाना खाने का तरीका. ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक, ये बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं. दीज आर ऑटोट्रॉफिक. सच एज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल आप ले सकते हैं. हियर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर दे विल बी फोटोसिंथेटिक और दे मे बी कीमोसिंथेटिक. यहाँ से देख सकते हैं, मे बी फोटोसिंथेटिक, मे बी फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक मीन्स दैट यूज सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक होते हैं. ठीक है, दीज मे बी कीमोसिंथेटिक. यहाँ खाना बनाने के लिए क्या यूज कर रहे थे? सोलर एनर्जी. इन फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर और टू मेक देयर और टू सिंथेसाइज देयर फूड. एंड here chemosynthetic bacteria use chemical energy instead of or at the place of solar energy. So except cyanobacteria, all those remaining are considered as chemosynthetic. There are certain bacteria also who can fix the atmospheric nitrogen such as rhizobium. We will discuss later on. In the last we will discuss they have different shape, having different shapes. इनके पास जो इनकी शेप है वो अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल रॉड शेप, रॉड शेप्ड. ओके बेटा, स्पाइरल. लास्ट एक और देखते हैं, कॉमा शेप, रॉड शेप, स्पाइरल शेप, कॉमा शेप. इसका एग्जाम्पल क्या है? बैसिली. इसका एग्जाम्पल क्या है? कोकाई. इसका क्या है? विब्रियो. ठीक है बेटा, तो रॉड शेप, बैसिली, स्पाइरल, कोकस और कोकाई, कॉमा शेप, विब्रियो. लेट्स कंसीडर वन मोर. लास्ट क्या है? स्पाइरल. स्पाइरल कौन होता है बेटा? स्पाइरुला. Okay beta, so all these are the categories of bacteria: Bacilli, Cocci, Vibrio as well as Spirilla. All these are the various form of bacteria. So this was all about bacteria. इससे बाहर आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, and this is more than your syllabus. It is 10 to 20% more than your syllabus. So no need to go everywhere. Just watch the video, note down all these points, and I hope that after seeing this video, note down all these things, and after reading once you will able to clear all. Clear? चलो आगे आते हैं बेटा प्रोटोजोआ की तरफ. They are also unicellular. ये भी क्या होते हैं? Unicellular, but these are eukaryotes. ये क्या थे? Prokaryote. These are eukaryotes. Means that
दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन मॉइस्ट एरियाज, फाउंड इन मॉइस्ट एरियाज, यानी मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं। कौन? प्रोटोजोआ। ठीक है, आगे दीज आर द एनिमल लाइक, ये कैसे थे? एनिमल लाइक। दीज आर एनिमल लाइक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फाउंड इन मॉइस्ट एरियाज। ठीक है, दीज में भी मोटाइल, मोटाइल का मतलब ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस अमीबा। ओके बेटा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ लैक्टोबैसिलस, you can take the example of rhizobium, ठीक है, and many more. Here amoeba, paramecium, euglena. Third category, that is algae. So what are algae? These are simple group of plant-like organisms found in aquatic habitat, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल सा ग्रुप है ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो कि प्लांट लाइक होते हैं, और मोस्टली ये कहाँ मिलते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर हो। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट इज हियर दैट these may be unicellular, such as Chlamydomonas, and may also be multicellular, such as seaweeds. सबसे important point, these may be unicellular. For example, you will take the example of Chlamydomonas. These may also be multicellular, such as seaweeds. Unicellular means that they may have single cell. Example of that is Chlamydomonas, and they may also be multicellular. Example of that is seaweeds. Exclusively or mostly they are found in aquatic habitats, and they are simplest plant-like organisms. Also they have chlorophyll, hence usually green in color. ऐसा नहीं है कि केवल ग्रीन ही होते हैं, ग्रीन इन कलर, दे में बी रेड, दे में बी येलो, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली जो होते हैं ग्रीन इन कलर, एंड ऑटोट्रॉफिक, यानी ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। बेटा ये ध्यान देने वाली बात है। दे मे बी फाउंड इन कॉलोनीज। नेक्स्ट पॉइंट, दे मे बी फाउंड इन कॉलोनीज। ये बेटा ग्रुप में भी मिल सकते हैं या कॉलोनीज में भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दैट इज क्लोरेला। ये क्या है? कॉलोनी में भी मिल सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोरेला है। नेक्स्ट, सम ऑफ देम आर ऑल्सो एडिबल। कुछ इसमें से खाने योग्य भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला, इसको कौन यूज करता है? यूज्ड बाय
स्पेस ट्रैवलर, यानी कौन इनका यूज करता है? स्पेस ट्रैवलर, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो यूज करते हैं किसको? क्लोरेला को, बिकॉज क्लोरेला इज वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ध्यान देने वाली बात है। सम ऑफ देम आर ऑल्सो एडिबल। क्लोरेला एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, सी वीड्स। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्लोरेला, सीवीड्स, क्लेमाइडोमोनास, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एल्गी। ठीक है बेटा, स्पाइरोगाइरा, ये सभी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज फंजाई। नेक्स्ट वन इज हियर fungi. What is fungi? These may be unicellular. For example, yeast and molds. Yeast and molds may be multicellular, or we can write mostly multicellular. Mostly क्या होते हैं? Multicellular. For example, you can take the example of mushroom. Okay, mode of nutrition. Mode of nutrition, खाना ये कैसे बनाते खाते हैं? Mode of nutrition is saprotrophic, means feeds upon dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter, यानी इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? सैप्रोट्रॉफिक है। इट मीन्स दैट वो फीड करते हैं किस पे? जो डेड रिमेन होते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के। इस वजह से आपने देखा होगा फंगस ऐसी जगह पे भी ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होने के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। आपने घरों में देखा होगा, आपने रोटी खाते हैं, उसको ऐसे आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए ओपन प्लेस में, वहाँ पे फंगस लग जाता है, आपका अचार खराब हो जाता है, सफ़ेद कलर की उसमें फफूंदी लग जाती है। तो वो सभी क्या है बेटा? वो फंगस ही तो है। आपका अचार खराब हो गया, मम्मी उसको धूप में रख देती हैं, क्यों? मॉइस्चर नहीं होगा तो ये फंगस ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दांत खाज खुजली हो जाती है, क्यों? फंगस। जैसे ही मॉइस्ट प्लेस आपको मिलेगा, इनको इम्प्योरिटीज़ मिलेगी, गंदगी मिलेगी, आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे, तुरंत कौन ग्रो करेगा? फंजाई। हेंस ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों पे रहते हैं बेटा, इस वजह से इनका नाम एक और रख दिया गया है। क्या है? सैप्रोट्रॉप। एक हमने आपको और बताया था, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल किससे बनती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। बेटा एक सेल वॉल इनकी कैसे बनती है? काइटिन की। इन द केस ऑफ एल्गी इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट, सम ऑफ देम आर एडिबल। सम ऑफ देम आर एडिबल, इसमें से कुछ खाए भी जाते हैं, जैसे मशरूम। ठीक है बेटा, आप देखें मशरूम आप लोग खाते हैं। मशरूम इज़ द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो दीज आर ऑल्सो एडिबल। अब एक लास्ट बचता है बेटा, वायरस के बारे में देखते हैं और आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देखिए, ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, ऑल दीज आर ऑलरेडी गिवन। नाउ आवर कैटेगरी नंबर 5, दैट इज वायरस। So these are so small, hence cannot be seen with normal microscope. Hence we use electron microscope.
स्कोप, इनको हम क्या करेंगे, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं, इस वजह से इनको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, दैट हैव वेरी हाई मैग्नीफाइंग वैल्यू, वेरी हाई मैग्नीफाइंग वैल्यू। इनके जो मैग्निफिकेशन का पावर, इनका जो मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करने का स्केल है बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा करके हमको दिखाते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कंसिडर एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेज आर कंसिडर एज connecting link between living and non-living things और organisms, living और non-living organisms के बीच में ये क्या है, connecting link है, because have no life and need host cell such as plant, animals, okay, plants, animals, bacteria, human being, for growth and reproduction। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, चूंकि वायरस क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जब तक इसको होस्ट नहीं मिलेगी तब तक ये क्या करेगा, नॉन लिविंग रहेगा। जैसे ही इसको होस्ट मिल जाता है ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, जो कि लिविंग का कैरेक्टर है। तो इसके नंबर्स में लगातार तेज़ी से वृद्धि होती है। कब, जब इसको होस्ट मिल जाए। होस्ट का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा, इनके पास कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होते, नो मेटाबॉलिज्म, हेंस नो नीड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनमें किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो, हेटेरोट्रॉफिक हो, कुछ भी हो, सैप्रोट्रॉफिक हो। एग्जाम्पल देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस, आप एक जानते हैं HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कहाँ, HIV वायरस, यानी जो कि किसको अफेक्ट करता है, ह्यूमन को, ये भी ह्यूमन बीइंग में ही अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से आपने देखो फ्लू या कॉमन कोल्ड, ठीक है, पोलियो, ये सभी क्या है, वायरल डिजीज है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। Okay then students, so this was all about for today's video. I hope that after watching the video you will able to understand all the concepts and there will not be any problem. But if you have any problem after watching the video also, then you can leave in your comment box. And thanks once again, and don't forget to like the video, share with your friends and subscribe the channel. So that is all about for today. Have a nice day, keep smiling. Jai Hind.